عقیدہ وہی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے ماننے کافر ہے۔ نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وحی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں۔ ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ چلو، نبوت کی جو وحی ہے، جی یعنی نبوت کی وحی وہ ہوتی ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے لے آتے ہیں۔ جی سمجھ میں آئی بات؟ جی اس کو کہتے ہیں نبوت کی وحی۔ جی وہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے، جی یعنی وہ صرف نبی کو ہوتی ہے جی اور کسی کو نہیں ہوتی۔ جبریل علیہ السلام وحی لے کر صرف نبی پر آتے ہیں، دوسرے کسی پر نہیں آتے۔ نہیں آتے۔ اور جو شخص یہ مانے، یہ کہے کہ نہیں جی دوسرے پر بھی آتے ہیں، وہ کافر ہے۔ وہ کافر۔ سمجھ گئے بات؟ جی مرزا کہتا تھا میرے پاس بھی آتے ہیں وہی لے کے۔ کون سا مرزا؟ قادیانی جو تھا۔ اچھا جی ہوتے ہیں۔ ہاں، جی جی وہ کہتا تھا میرے پاس آتے ہیں جبریل علیہ السلام۔ مریا سی لیٹ رہی نچ۔ ہاں، برا حال ہے۔ اچھا جی ہم اسے کافر کہیں گے کہ گمراہ کہیں گے؟ کافر ہے۔ جی اور وہی شیطانی کے اور سنو، جی جی وحی کی کئی صورتیں ہیں۔ جی بعض اوقات خواب بھی آتا ہے نبی کو، جی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا جی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، جی تو انہوں نے بیٹے کو ذبح اپنی طرف سے کر ہی دیا۔ جی وہ تو اللہ نے بچا لیا نا جی، بے شک۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کر دیا۔ جی تو وہ جو خواب آتا ہے نبی کو، جی وہ بھی وہی ہی ہوتا ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے؟ جی اور وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ بے شک۔ اس خواب کے جھوٹا ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جی نبی کو جو خواب آتا ہے وہ بالکل 100% سچا ہوتا ہے، جی بے اور شک۔ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہی ہی ہوتا ہے۔ جی سمجھ گئے بات؟ جی جی اولیاء اللہ کو خواب میں یا بیداری میں دل کے اندر ایک بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی کسی اللہ کے ولی کو اس کے دل میں خواب کے اندر بات آ جائے یا آ جائے جاگتے ہوئے، جی اگر تو وہ ہے نیک بات کی، نیک بات، جی خیر کی بات ہے، جی پھر تو وہ ہے الہام۔ جی اس کو کیا کہیں گے؟ الہام۔ الہام۔ اور اگر کسی کے دل میں بری بات آ جائے وہ شیطانی وسوسہ۔ تو وہ کیا ہوگا؟ وسوسہ۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ وسوسہ۔ جو اچھی بات آپ کے دل میں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، جی بے شک۔ الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جی اور بری بات جو دل میں آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ جی بے شک۔ کدھر سے آتی ہے؟ شیطان۔ شیطان۔ تو جو دل میں نیک بات آ جائے نا، اچھی بات آ جائے، اس کی اتباع کرنی چاہیے، اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو بری بات دل میں آئے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک۔ سمجھ گئے بات آپ؟ جی ہاں جی، آگے چلیں۔ اس کو الہام کہتے ہیں۔ اور وہی شیطانی کے الکامین جانب شیطان ہو، یہ کاہن، ساحر اور دیگر کفار و فساق کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں، یہ کاہنوں کو ہوتی ہے،
वो जो वसवसे की बात मैंने कही ना, शैतान की तरफ से बुरी बात दिल में आती है ना, जो वो आती है काहिनों को। जी काहिन कौन होते हैं? काहिन वो होते हैं जो गैब जानने का दावा करते हैं। जी वो ये दावा करते हैं कि मैं गैब को जानता हूँ। जी अच्छा, फिर आप कहेंगे कि जनाब वो गैब की बातें भी बताते हैं, जी तो अगर वो झूठे हैं तो गैब की बात कैसे बता देते हैं? जी भाई मियाँ, वो जिन्नात जो है ना, बिलखुसूस शैतान जिन, जी उनके साथ उनका ताल्लुक़ होता है। जी तो वो जिन्नात जो है उसको आके बात बता देते हैं कान में, जी उनसे सुनकर आपको बता देता है। भाई शैतान को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि वो 1 सेकंड में ज़मीन के मशरक़ में पहुंच जाता है, वहाँ सारा कुछ देख दिखा के आपके कान में फूंस मार दे। जी फिर क्यों चलाई? किबला आँख में ज़रा। अच्छा, आँख में उठे, समझ में आ गई बात? जी तो वो जो है ना, वो झूठ भी अक्सर होता है, जी क्योंकि शैतान झूठ भी बोलते हैं। जी इसलिए काहिन जो है उसकी बात को सच्चा मानना बेदीनी है। बेशक। समझ गए बात आप? जी किसी ऐसे शख्स की बात को नहीं मानना जी जो ये दावा करे कि मैं कल की बात जानता हूँ, मैं गैब की बात जानता हूँ, उसकी बात आपने नहीं माननी। नहीं मानी। बेशक। काहिन समझो उसको और उससे दूर भागो, वो झूठा है, वो शैतानों का दोस्त है। बेशक। समझ गए बात? जी गैब जानने का दावा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं किया, अल्लाह अकबर। बेशक। बल्कि जब काफिरों ने कहा कि आप हमें कोई ख़जाने दे दें अगर आप रसूल हैं, तो आपने जवाब में अल्लाह के हुक्म से फरमाया, ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं गैब जानता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने गैब जानने का दावा बोलो बेशक नहीं फरमाया। नहीं फरमाया। अगरचे वो गैब का इल्म रखते हैं, बेशक रखते हैं। अल्लाह ताला ने उनको गैब का इल्म अता फरमाया है। जी चुनांचे कुरान में खुद रब ने फरमाया, आलिमुल गैब जी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। जी अल्लाह आलिमुल गैब है, गैब का इल्म रखता है, अपने गैब पर किसी को इत्तला नहीं देता सिवा अपने पसंदीदा रसूल के। बेशक। ये तो वासी हो गया। वहाँ से बात हो गई। जी तो अल्लाह अपने रसूल को गैब बताता है बेशक। जी, और किसी को नहीं बताता। नहीं बताता। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो गैब का इल्म है। क्या ख्याल है जी? अल्लाह के अता फरमाने से बोलो ना, बेशक है। अल्लाह के अता फरमाने से अल्लाह के अता फरमाने से। बेशक है। अल्लाह के अता फरमाने से है, जी अल्लाह के अता फरमाने से। खुद ब खुद नहीं है। बेशक। ठीक है ना जी? किस तरह है? अल्लाह के अता फरमाने से। अल्लाह ने उनको अता फरमा रखा है, बेशक। इस वजह से उनको गैब का इल्म है। तो इसके बावजूद वो गैब जानने का दावा नहीं करते। जब वो नहीं दावा फरमाते, किसी दूसरे को दावा करने का किसने हक दिया है? समझ में आ गई मेरी बात? जी। लिहाजा जो गैब जानने का, कल की परसों की बातें जानने का और आपको बताने का दावा करे, समझ लो झूठ बोलता है। बेशक। और जड़े बैठे होंगे ने जी, आपका ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, और दूसरे दे हफ्ते 10 दिन, अपने हफ्ते का उन्हें पता ही कोई नहीं होता। वो अपना हफ्ता लगा रहे होते हैं। वो अपना हफ्ता सीधा कर रहे होते हैं। जी।
अपने हफ्ते का पता नहीं, दूसरों का क्या पता चलेगा जी। जी ये झूठे लोग हैं, इनके पास आपने नहीं जाना। नहीं जाना। अकीदा, नबूवत। अच्छा, दूसरी बात, जी जी ये जो बुरी बातें हैं ना, ये साहिर के दिल में भी आती हैं। साहिर का माना है जादूगर। जी देखो, इल्म दो हैं। एक इल्म है जिसको हम नूरी इल्म कहते हैं, जी वो इल्म है जो अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाया। जी दूसरा इल्म भी एक है, वो शैतानी इल्म है, जी काला इल्म उसको कहते हैं। जी वो शैतानों पर अल्लाह ने उतारा है। समझ गए बात? जी वो जो शैतानों पर उतारा है ना, वो है जादू का इल्म। और इल्म जो इल्मी है ना जी, जी नूरी इल्म होगा तो जिस बंदे के पास होगा वो बंदा नेक साले होगा, जी बेशक। उसका चेहरे से भी आपको नूर नज़र आएगा। जी और जड़ा काले इल्म है ना, वो तो बूथा भी काले ही होगा। वो काफिर होगा। अगर वो मखलूक को नुकसान पहुंचाता है उस इल्म से और कुफरिया काम करता है, कुफरिया बातें कहता है, काफिर हो जाएगा। जी बेशक। और अगर नुकसान नहीं पहुंचाता और कुफरिया बातें भी नहीं उसमें शामिल, तो फिर काफिर नहीं होगा। मतलब काले इल्म से फायदा भी होता है। फ़ायदा भी हो सकता है, आप किसी का फ़ायदा भी कर सकते हैं। लेकिन रहेगा तो वो गुनाहगार ही। नहीं, अच्छा काम नहीं है। अगर वो फ़ायदा लोगों का करता है ना, फिर तो गुनाहगार भी नहीं है। हाँ, अगर उल्टा करता है यानी कि तो किसी उससे का फायदा ले भी फिर सकते हैं ऐसे बंदों से। लेकिन आप लोग ना जाना, क्योंकि ये बंदे जो बैठे हैं ना, ये शैतान ज़्यादा होते हैं, 99% शैतान होते हैं। तो ये पता क्या करते हैं, आप जाओगे ना, ये जनाब मेरा काम कर दे, वो पैसे मांगते हैं। जी जी ऐसे। अच्छा, आप 5-10 हज़ार दे आएंगे ना उसको, वो देख लेगा कि ये तो मोटी सामी है, फिर वो चक्कर खुद चला देगा, आपको बीमार कर देगा या कुछ चक्कर ऐसा हो जाएगा। दोबारा आप जाओगे, फिर 10,000 दे आओगे, 15-20 दिन फिर ठीक रहोगे, फिर चक्कर चला देगा। तो आप फिर चक्कर ही लगाते रहोगे उधर, पैसे देते ही रहोगे उसको। इसलिए ऐसे शैतानों के पास जाना ही नहीं चाहिए। इनको जो नजूमी भी कहते हैं, नहीं, नजूमी और होते हैं। तो वो भी काफिर होते हैं। नहीं, वो काहिन ही हैं जो सितारे देखकर वो अंदाजे लगा लेते हैं, लेकिन जो असल इल्म नजूम है ना, जी। वो तो दुरुस्त है। अच्छा। हाँ, वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता फरमाया था। वो दुनिया में नहीं है आज, नहीं है। किसी के पास नहीं, जो हाथ दे के बताते हैं। ये नजूम नहीं है, ये पामिस्ट्री इसको बोलते हैं। उर्दू में इसका नाम है इल्म क़ियाफ़ा। तो किबला ये दुरुस्त है। नहीं, ये भी अंदाज़ी ही है। हुजूर वो भी तो कहते हैं, वो जो अक्सर वो कहते हैं उनका स्कॉर्पियो वगैरह बना था, इस तरीके को जो पहला हुआ उसका ये निशान है, इस तरीके को पहले उसका ये निशान है उसका। और ये नजूमी ही करते हैं। ये सारे उलूम जो है ना, जो ये आज के नजूमी है, ये तो झूठ बोलते हैं। जी अच्छा, ये जो हाथ देखने वाले हैं ना, जी ये अंदाजे लगाते हैं जी। और कभी अंदाज़ा दुरुस्त साबित हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। तो किबला अगर हाथ दिखाना चाहिए किसी को? नहीं नहीं, नहीं, जी जो किस्मत में जी ऐसे वहम में पड़ जाओगे आप। जी 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 तो बेशक। आप ये कह दिया, आप उसी में सोचते रहोगे मेरा दरमियान होना ही नहीं ये वो। हैं? आप चले गए किसी के पास में, हाथ हो तेरी है तो 4 शादियां लिखी हैं भैया। ये खुश हो जाएगा। चाहे एक दिन हो। ये भी हो सकता है कि एक दिन आओ। उसने तो खुश कर दिया जी उस बंदे को। तो आप चक्कर में पड़े रहोगे ना, इसलिए क्यों खामखा उल्टी तरफ जाते हो आप। जी जी बेशक। अच्छा, अकीदा, नबूवत किसी साहिर के बाद एक और लफ्ज़ भी था। और दिगर कुफार फसाद के लिए हाँ, होती है। काफिरों को भी ये जो है ना शैतानी बातें, बुरी बातें, होती शैतान है। उनके दिलों में भी डालता है, बदकार लोगों के दिलों में भी डालता है। जी वालेकुम सलाम। तुसी तो 10 बजे तो भी लेट हो गए हो जनाब। जी मैं काम कर रहा था, उसके बाद नहा
ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਤੇ ਨਹਾना पै जाते रात 10 बजे। नबूवत किसी नहीं बदकार आदमी के दिल में शैतान बुरी बात डाल देता है। डालते। हमारे दिल में बुरी बातें अगर ज़्यादा आए तो फिर समझ लो कि हम बुरे आदमी हैं। जी शैतान हमारे साथ बैठा है। अंदर बैठा है, दिल दे विच वड़िया पिया। इसको तो मैं नहीं कह रहा, ये तो तुम्हारे अंदर नहीं बैठ सकता। बैठ के जाओ। तो हुजूर चलिए। शैतान अगर दिल में बैठा है तो उस तरह हर किसी काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं वो गुनाहगार हैं। दिल में नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने कहा अंदर अंदर में। बैठा है तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो लेकिन शैतान तो एक ही है। कौन सी जगह में बैठा हाँ जी, शैतान एक ही है। वो उन्होंने जड़ा अब्बा है ना वो एक हैगा। उनके पुत्र ज्यादा हाँ देखो देखो मेरी बात सुनो। जी 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 इंसान जो है ना कितने हैं बहुत ज़्यादा। इस वक्त 7 अरब हैं दुनिया में। बेशक जी। जी जिन्नात 4 गुना ज़्यादा हैं इंसानों से। अल्लाह अकबर बेशक तो ये 7 अरब को 4 से ज़रब दे लो, 28 अरब जिन हैं। जी और शयातीन जिन्नात से 4 गुना ज़्यादा है। 4 3 12 120 28 28 कितना हुआ? 4 निकाल 28 को 4 से ज़रा दे दे। 56 102 56 112 किबला 112 अरब शयातीन है। उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਇਬਲੀਸ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ हिदायत जारी करता है। गाइड फरिश्ते हैं और कितने गुना उनसे? फरिश्ते तो उनसे भी 4 गुना ज़्यादा है, बल्कि उनकी तो तादाद ही मालूम नहीं है। समझ रहे बात? ड्यूटी लगाता है वो सुबह को रोज़ाना। तो उन्हें आज अनीब के पास तो उन्हें तबस्सुम के पास, तो उन्हें अहमद ये बल्लू के पास जाना है, शैतान तो उन्हें ये चिश्ती के पास जाना है। इसके पास ज़रूरत ही नहीं जाने की। जो शैतान तो अल्लाह का बहुत नाफरमान है, तो उसमें इतनी ताकत अल्लाह ने तो अल्लाह ने दी है ना। ये तो अल्लाह नहीं है, फिर? लेकिन वो तो बहुत नाफरमान नहीं है। नाफरमान को भी ताकत देता है, सल्ब नहीं करता। ट्रम्प को नहीं मिली। मुझे बताओ काफिरों को ताकत नहीं दी? हाँ, पैसा नहीं, प्रॉपर्टी ये वो हर शय। ताकत भी है कि नहीं? वो कुफ्र करते हैं, शिरक करते हैं, बुत बनाते हैं, लड़ते हैं तुम्हारे साथ, जंगे करते हैं। ताकत है तो करते हैं। दुनिया को हिलाया हुआ है उन्होंने। हाँ जी भाई, अगर वो उनको ना दे तुम्हें दे फिर तो वो मजबूर हो जाएंगे। कल को सजा कैसे दी जाएगी उनको? फिर सजा की नहीं दे रही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? जी हाँ। नबूवत किसी नहीं कि आदमी इबादत व रियाजत के ज़रिया से हासिल कर सके। किसी नहीं कसबी। कसबी सही नहीं लिखा हुआ? नुक्ता है लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं जी। हाँ, तो मेरे ख्याल में तुम्हारी नज़र पर असर पड़ गया जी लाइट ज़्यादा तेज़ हो गई है शायद। इसको पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए था। जी नबूवत कसबी नहीं कि आदमी इबादत व रियाजत के ज़रिया से हासिल कर सके। अच्छा भाई बात सुन, कसबी का माना है अपनी मेहनत से कोई चीज़ हासिल कर सकता। जी कसब है मेहनत। जी ठीक है, आप मेहनत करें, मशक्क़त करें, जैसे आप काम करते हैं, जी कपड़े सीते हैं। आप अगर 10 जोड़े रोज़ सीते हैं तो 500 रुपये एक जोड़े की सिलाई हो तो 5000 रुपये हो गया। जी डबल मेहनत की 10,000, ट्रिपल की तो 15,000 हो गया। 15,000 उससे ज़्यादा कर ले 20,000 तक चलेगा। ये मेहनत के ज़रिए से आप ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते कर हैं। रहे हो। ये कसम है। ये कसब है। और नबुव्वत जो है ना, इसका बंदे के कसब से कोई ताल्लुक नहीं। बेशक बेशक। कोई भी शख्स इबादत, रियाजत, मेहनत, मशक्क़त करके नबुव्वत हासिल नहीं नहीं कर कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर ये कसबी होती ना जी तो मेरे ख्याल है तुम किन्ने बंदे बैठे हो? 7 जी ਤੁਹਾਡੇ जो 4 ने दावा कर देना से। हाँ हाँ भी बड़े शय है ना, एक बड़ा इनाम है ना जी। कौन चाहता है कि मुझे ना मिले इनाम? लेके नहीं आया है जे मेहनत नाले होंदा ते तू खुद खड़ोना सी, तू आखना सी मैं नबी हैगा।
मैं बड़ी मेहनत की थी जनाब, मैं तो जनाब 24 घंटे नमाज पढ़ता रहना है, मैं रोज़ रोज़ा रखता हैगा, मेरे तो वर्ग आबिद जाहिद ही कोई नहीं। मैं रोज ना रोज़ाना है कह सकता तो। अभी समझ में आई बात आपकी कि नहीं? जी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के कसब से नबूवत का ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया बेशक और ये शुरू से ऐसे ही है। शुरू से, कि ये चीज़ इंसान अपने कसब से नहीं आ नहीं आ सकता, सकता। नहीं आ सकता। ये जिसको हम देंगे उसी को मिलेगा। अपने फजल से देंगे, बेशक अपने करम से देंगे देंगे, अपनी रहमत से देंगे। ये खालिस हमारा फजल व करम और रहमत होगी। बेशक समझ के बात आप? जी हुजूर एक सवाल था कि जब अल्लाह ताला नबूवत के लिए बंदों को चुन लेता है तो उनको जब जिस्म उनका बना लेता है तब उनको रूह में बना लेता है, चुनता है या पहले ही चुन लेता है कि मैं वो पहले खास से ही बंदा- इंतखाब किया पहले हुआ से- है। अजल से अब जी, तक सारे ठीक है। फैसले तो ये किस तरह मिलती है नबूवत? अल्लाह के फजलो करम से। बोलो ना, अल्लाह के फजल फजल से। से। बंदे की मेहनत का उसमें कोई ताल्लुक नहीं बिल्कुल है। नहीं। नहीं। ये बात पक्की है, इसको दिल की तख्ती पे लिख लो। बेशक अब मैं आपसे पूछता हूँ, जी इंसान पर सबसे बड़ा इनाम कौन सा है? बड़ा नबी बनाना, नबूवत और रिसालत किसी को दे देना ना इंसान को, यही सबसे बड़ा इनाम है। बेशक समझ में आ गई बात? जी कुरान में अल्लाह ने फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने उन पर इनाम किया है। किन लोगों पर? मिनन नबीयीन, नबियों पर, बेशक व सिद्दीकीन, सिद्दीकों पर, व शुहदा, शहीदों पर, व सालिहीन, औलिया पर। तो नबियों पर क्या इनाम किया है? जी। यही नबूवत वाला, नबूवत अता फरमाई। उनको नबूवत अता की है, ये अल्लाह का इनाम है। सबसे पहले अल्लाह ने नाम ही इसी का लिया है। इससे पता चला कि सबसे बड़ा इनाम नबूवत है, बेशक और वो जो सबसे बड़ा इनाम है जी वो बगैर मेहनत के दे रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। फजल कोई भी तो है ना मेहनत उसका, मुशक्कत, कोई करम भी मेहनत है। कोई चक्कर नहीं। कोई चक्कर, कोई कसब शसब नहीं है, यहाँ हमारा करम है यार। वो जो सबसे बड़ा इनाम अपने करम से दे रहा है, छोटे इनाम हमें मेहनत करा के देगा। वो फिर ऐसे ही बांट ही जाएगा फिर। जी अच्छा, फिर मैं एक और बात कहता हूँ। अल्लाह ने ईमान की दौलत जो अता की है हमें, जी ये हमने मेहनत करके लिए। नहीं नहीं ये भी तो फ्री आई है। जी बाकी पैसे बहुत बड़ा इनाम है ईमान के लिए। ईमान इतना बड़ा इनाम है कि बाकी सारी नेमतें दुनिया आखिरत की इसी की बुनियाद पर है। बिल्कुल ऐसा। ये जड़ है, बेशक असल यही है। ठीक है। ये जड़ होगी तो आगे नेकियों का, इनामात का दरख्त भी चलेगा। चलेगा, उगेगा, फैलेगा, फूलेगा। ये जड़ ही किसी में ना हो तो वो तो जानवरों से भी बदतर है। बेशक हैवान होगा। आप देख लो, काफिर जो हैं वो संजा करते हैं भला? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पता नहीं। शिशु रखते हैं। नहीं ना करते हैं। पेशाब पखाना करते हैं, टिश्यू से साफ करते हैं, और टिश्यू से धुलता तो नहीं ना है। नहीं। बहुत से वो भी हैं जो टिश्यू भी इस्तेमाल नहीं करते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो जानवरों की तरह पेशाब पखाना किया और वो गए। मुझे बताओ, उसमें और जानवर में क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं। आप मुसलमान हो, मोमिन हो, ईमान लाए हो, कलमा पढ़ते हो, आप कितना सफाई का ख्याल रखते हो अपना? आप में उसमें कितना फ़र्क पड़ गया? बेशक आप पहले, गांव के लोग तो ऐसे करते हैं, पहले मिट्टी का टीला इस्तेमाल करते हैं, जी फिर पानी से धोते हैं, जी फिर जनाब वो जब तक खुश्क न हो जाए उठते ही नहीं है ताकि कपड़ों को पानी न लग जाए। ऐसे ही है। फिर हाथ अपने साबुन से धोते हैं। कितने साफ हुए आप। ये एक मिसाल मैंने आपको दी है। जी आप इसी तरह दूसरी बातें गौर करते चले जाओ। ईमान की बुनियाद पर
یہ سب کچھ آپ کو عطا ہوگا. جو آپ کو ثواب ملے گا کس کی بنیاد پر ہوگا؟ ایمان کی بنیاد پر اور قیامت کے دن جو آپ کو انعامات ملیں گے ہر چیز ایمان اور جنت ملے گی کس کی بنیاد پر؟ یہ آپ نے کتنی محنت کی ہے جس سے انعام یہ ایمان لے لیا ہے؟ ساری نام مل رہی ہے. سب کا ان کا فضل ہے. سب صرف اللہ کا فضل ہے. بے شک بے شک بے شک. اللہ نے قرآن میں فرمایا، اب اللہ نے قرآن میں تو وہ فرمایا، وہ آیت تو میں نہیں آپ کو سنا رہا، میں آپ کو سنانے لگا ہوں. حضرت شیخ فرید الدین عطار کا ایک شعر، جی وہ فرماتے ہیں پند نامہ کے شروع میں، حمد بے حد مر خدائے پاک را. ہیں بھائی؟ جی حمد بے حد مر خدائے پاک را. پاک را. فارسی میں بس آنکھ ایماں داد مشت خاکرہ، ایماندار مشتاق. بے حد تعریف ہے اللہ پاک کے لیے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. بے حد تعریف ہے اللہ پاک کے اللہ پاک، جس نے خاک کی مٹھی کو ایمان کا جوہر عطا سبحان کیا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. ہاں جی، یہ تو مٹی کی ایک مٹھی ہے، جی ہے نا. اللہ رب العالمین نے اس مٹھی کے اندر ایمان کے جوہر کو چھپا رکھا. یہ خالص فضل ہے اس کا، اور کچھ بھی نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو بنیاد ہے سب نعمتوں کی، جو جڑ ہے سب انعامات کی، وہ اللہ نے دیا اپنے فضل سے، تو باقی جو ہے وہ تمہاری محنت کے ساتھ مشروط کرے گا. رہا ہی نہیں کچھ. پیچھے رہا کیا؟ جب جڑ ہی آ گئی تو سارا پیڑ ہی اسی جڑ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو نا نیک کام، جی کبھی نہ سمجھنا کہ اس میں تمہاری محنت کا کوئی دخل بے ہے. شک بے شک بے شک. یہ صرف اللہ کا کرم ہے محض اللہ کا کرم و فضل ہے. کہ اس نے تمہیں اپنے لیے چن لیا ہے، بے شک. اپنے رستے پہ لگایا ہوا، اپنے دین کے علم کے لیے منتخب کیا ہوا. یہ تمہارا کوئی کمال نہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے تم پر فرما رکھی ہے. بے شک. سمجھ میں آگئی بات کہ نہیں؟ جی. ہاں جی. تو نبوت جو ہے کسبی نہیں ہے، ایمان بھی کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے. کیا ہے؟ وہبی. وہبی. اب میں آیت بھی وہ قرآن میں سنا دیتا ہوں ایمان کے بارے میں جو ہے. اللہ نے فرمایا حبب الیکم الایمان. دوسری آیت میں فرمایا ہداکم للایمان، اس نے تمہیں ایمان قبول کرنے کی ہدایت عطا فرمائی. سبحان اللہ. ایک پہلی آیت جو میں پڑھ رہا تھا اس میں ہے حبب الیکم الایمان، ایمان کو تمہارے لیے پسند کیا اس نے. سبحان اللہ. وزینہ فی قلوبکم، اور اس کو یعنی ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا ہے. تو دل میں ڈالا تو مزین کیا ہے. جی تو یہ سارا کام تو خدا نے کیا ہے. خدا نے کیا، اللہ کا فضل و کرم ہے. تو باقی کام جو آگے تم کر رہے ہو وہ بھی خدا ہی کروا رہا ہے. بے شک. آگے سمجھ میں بات؟ جی بہرحال اتنی بات تو پکی ہے کہ نبوت و رسالت کسبی نہیں ہے، اور ایمان بھی کسبی نہیں ہے. چلو بلکہ محض عطائے الہی ہاں ہے محض ہدایت ہے. کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے. ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل سے بناتا ہے. اب قابل تو وہ بنا دیتا ہے. جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر یعنی ساری خوبیوں سے مزین ہو جی اور ہر برائی سے پاک ہو، اس کو نبوت دیتا ہے. ہو کر جملہ مدارج و ولایت طے کر چکا ہے، اور اپنے نسب و جسم مقول فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے. منزہ کیا پڑھو گے؟ منزہ منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو. اسے عقل یعنی نبی کے اندر نا کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں. جی بے شک. اسے عقل نہ کامل کوئی اس کی عادت ایسی ہوتی ہے، نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے، نہ کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے
ना कोई और मामला ऐसा होता है। जी नबी अलैहिस्सलाम सारी खूबियों के जामे जामे होते हैं, बेशक नक्श व ऐब उनमें होता ही नहीं है। मुझे एक छोटा सा सवाल, जो पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी आए हैं, तो जब मतलब कि वो नबूवत का ऐलान करते थे तब वो नबी होते थे या पहले भी मतलब बचपन से ही नबी होते थे? नहीं, नबी जो है ना वो पैदा होते ही नबी होता है। हर नबी जी उसे अक्ल कामिल अता की जाती है जो औरों की अक्ल से बदर जहाज ईद होते हैं। हैं? बदर जहाँ, सही था। बदर जहाँ जायद होती है। हाँ, नबी की अकल जो है ना दूसरे सब की अकल से ज़्यादा होती है, बेशक कई दर्जे ज़्यादा होती है। जी हाँ जी। किसी हकीम और किसी फ़लसफ़ी की अकल उसके लाखोंवीं हिस्सा तक नहीं पहुंच ना, सकती। नहीं पहुँच सकती। अल्लाहु आलमु हैसु यजालु रिसालता ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता फरमाए, अल्लाह बड़े फजल वाला है। और जो इसे किसी माने के आदमी अपने कस्ब व रियाज़त से मनसब नबूवत तक पहुंच सकता है काफिर है। हाँ, जो समझे कि नबूवत कसबी है, हाँ रिसालत कसबी है, वो काफिर है। बेशक अकीदा जो शख्स नबी से नबूवत का ज़वाल जायज़ जाने ये काफिर है। ज़वाल से बाद में बात है। इंशाअल्लाह। कल तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है ये क्या ख़त्म हो जाता है? अकीदा। जो शख्स नबी से नबूवत का ज़वाल जायज़ है जाने काफिर है। इंशाअल्लाह खत्म। आगे समझने ये बाब ख़त्म हो गया? नहीं जी ये अकीदा नहीं, खत्म। बस अकीदा यहाँ से फिर जी